Very good evening, dear friends. Today we are here to discuss more in detail role of digital media as a tool to access global market for SMEs. This is SME growth series has been established by AMA, particularly for SMEs. This is the growth series number 4. Today we have our experts on the dais, Mr. Amit Khetan, CEO, After First, Mr. Sandeep Sisodia, founder, Epsro Solution, Mr. Dhruv Pandit, founder, Heritage Cyber World, Mr. Abhishek Jain, CA, co-founder, NAPBooks, and our young speaker, Mr. Vinod Malavia, founder and managing director, partner Shubham. Sir, and also our AMA Governing Council members and Unmesh Bhai, who is our Executive Director AMA, invited guests, ladies and gentlemen. We welcome you all for this 4th SME Growth Series organized by Ahmedabad Management Association under the banner of Dr. Jaimin Vasa, that is myself, AMA MSME Development Center. Friends, this topic of the panel discussion, as I told you, the role of digital media as a tool to access global market for SMEs, challenges and opportunities. Dear friends, as you know that MSME sector in India has shown the resilience and growth over the years. MSMEs are the backbone of the Indian economy. Also, MSMEs account for almost 29% of the Indian GDP, 45% of the manufacturing output, and 40% of the exports. MSMEs also employ, as you all know, that 113 million people, which is more than half of the total workforce in India. And this sector has the potential to create 10 million new jobs over the next 4 to 5 years. I take this opportunity to inform you that why MSME is important and why they need more and more support on a various important and key subjects. During the last year, if somebody might have read in the newspaper, the share in export fell to 44% from 50%. Before Corona period, the MSME contribution in export was around 50% of India's total export. And also, it is very much alarming that during the last financial years, around 13,000 MSCs were closed down. Now, if one MSME employs on an average 10 people, we can understand that 1,30,000 have become the unemployed. It's a really warning alarm. And a large number of MSME operating in the country are struggling for their growth and development. Of course, SME hold the key to Make in India and $5 trillion economy. MSME plays a vital role. Some statistics says that today MSME contributes 29% of the GDP. If India has to reach 5 trillion economy, the minimum MSME contribution should be around 40%, if I'm not wrong. In this direction, to encourage MSMEs for their growth and sustainability, AMA has taken many initiatives and started the event like SME Growth Series under the banner of this center. First event was on the topic Innovative Marketing Tools for SME Growth. Second series was on the topics of the Managing Finance, a major bottleneck for SMEs for their growth and sustainability. And the third series was Family Business Legacy and Leadership Journey from MSME to Corporate. See, in the current trade paradigm, MSME's performance
in international markets has much scope for improvement, and in most of the specialized markets and sectors that call for the technology readiness and R&D intensity, such as telecom, IT hardware, electronics, India remains a net importer of the goods. While in all our other sectors, the relative competitiveness of MSME units in India in the global supply chain continues remain the promising stage. Dear friends, the digital landscape for MSME has changed dramatically in recent years, and a variety of new developments have emerged that can begin to shape the characteristics of a successful digital ecosystem, such as stronger cloud services, the use of blockchain technology, the integration of artificial intelligence and the machine learning, and many, many more. The most important learning experiences in the recent years have focused on how such technology can improve companies' sustainability and performances. See, I was reading somewhere, listening to our minister, that for end-to-end digital technology, we are number 5 today, after China, Korea, Finland, and Sweden. So this is one of the very big achievement for India. And as per our Union Minister, he also said that in a very short time, in a 5G, 364,000 towers has been built. This is a record. It's been done anywhere, anytime in the world. Now, friends, overall digital transformation can offer a range of benefits to MSME, like increased productivity, improved customer services, enhanced sales and marketing, improved access to finance, and enhance the innovation. These are all the outcome of the digital technology. So, digital technologies can help MSMEs to innovate by providing them with the access to new ideas, tools, and resources. Our expert speakers of this event will explain more about the role of digital media and as a tool to access the global market for SMEs, and what are the opportunities and what are the challenges MSMEs are facing to engage the digital media. That is the theme of today's function, that we should know. I am also SME. I know that almost 70% of the SMEs doesn't know what is digitalization. And out of 30% who knows, 50% never apply it. So very small number of SMEs use the digitalization. So that number we want to increase, and more it is increased, more is the success for the SMEs. We have today, let me introduce our experts today. Mr. Amit Khaitan is the moderator of today's event, and he is the founder of Allied First, After First, a specialized digital marketing agency. He has been a part of e-commerce and digital marketing landscape since 1998, featuring an extensive press and TV coverage in the promising era of internet in India, that is 1998 to 2000. Let me welcome him with a bouquet and a book. Our today's second expert is Mr. Sandeep Singh Sisodia, CEO, Epsro Solutions LLP, is a pioneer in the startup ecosystem, having successfully navigated the funding landscape for startups and small enterprise. He is a great speaker and a mentor with proven expertise in identifying opportunities and sharing them with others
for mutual benefits. Let me welcome him, Mr. Sisodia. Thank you, sir. Thank you so much for coming. All the best, sir. Thank you. Thanks for accepting our invitation. Third, Mr. Dhruv A. Pandit, certified. He is the person everybody should know about him. I just came to know about him, how much important is the person. He is a certified cyber security expert and co-founder Heritage Cyber World LLP. His specialized field of cyber defense and having an expertise and experience of more than 7 years in cyber security, also holding more than 10 certification in cyber security. More about him, during the event deliberation, he will introduce himself, or Mr. Khetan will introduce. Let me welcome Dhruv. And our next expert is Mr. Abhishek Jain CA, co-founder. NapBooks is a rank holder, chartered accountant and technocrat. Everybody is a rank holder. For me, they are all rank holder. And he has been in the finance profession for the past 7 years. All are young people. He having wide knowledge. His company, NapBooks Limited, NBL, is an experienced software development company with expertise in technical, financial, and business solutions. Let me welcome our Abhishek ji. Welcome, sir. Thank you so much. And last but not the least, very young chap, a good friend of mine, Mr. Vinod Malavia, founder and managing partner, Shubham INC, leads marketing, sales. He's an all-rounder. Marketing, you talk to him on any topic, he's ready with all the latest information. Marketing, sales, design and project functions at Shubham with chemical engineering close to his heart. He drives and enables creativity and innovation across all streams of engineering and technology. So we have with us a jewels of people, and let me welcome my friend Vinod. All the best. Thank you. Dear friends, a study by NASSCOM found that MSMEs that adopt digital technologies can increase their productivity by up to 20%. Also, a study by Salesforce found that MSMEs that use social media to engage with customers can increase their customer satisfaction up by 25%. And as per the Google study, they found that MSMEs that use online marketing can increase their sales by up to 15%. A good figure. Let us start using this digitalization as fast as possible. A study conducted by the World Bank found that MSMEs that use digital financial services can increase their access to finance by up to 50%. As per the Boston Consulting Group study, they also found that MSMEs that adopt digital technologies are more likely to innovate than those they do not. So dear friends, with this seminar, we want to highlight how MSMEs can find solutions to unique challenges for their business with the help of new age digital tools. All the above speakers are experts in digital technology and in their own field. They can help us in this during the question answer, and later on also you can just contact them, and they will share their invaluable tips that can make all the difference for your ventures. So let us enjoy this fourth SME growth series, and I'm sure we all will be getting benefited with this, and particularly MSMEs. Thank you for your presence for this particular important event. And now I invite our moderator, Mr. Khetan, and I ask him to just take over. Thank you.
like to have a mic there or? No, I'm comfortable here. Okay. Yeah. First of all, I'd like to thank Jaimin ji for the amazing insights that he shared on the various statistics and how digital marketing is becoming key. You know, when I did my MBA from IIM Ahmedabad 20 years back, people used to either want to get into marketing or they wanted to get into finance. Now I think there's a third pillar, that a day will come when people will say, I want to get into digital marketing first, then marketing, then finance. So I was talking to one of the speakers and he said, all these fields are actually converging into one single discipline. And this lineup is amazing, and I have already learned a lot from them in our pre-interaction. So without further ado, I'd just like to quickly move the stage to them and get started with some interesting questions. My first question is to Vinod. Vinod, would you like to tell us something about, so Vinod, basically, as Jaimin ji already mentioned, so he runs a very successful company. So he's leveraged digital marketing in a very effective way to grow in a very, very short span of time. So I would love to know, Vinod, and I'm sure the audience would too, that how did digital marketing tools help you in your business journey? So thank you, Amit. And नमस्कार मेरे युवा साथियों. तो मैं बिफोर आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ. युवा मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि इस दर्शक दीर्घा में शायद से 16 से 17 साल से लेकर 70 साल तक के युवा मौजूद हैं. और युवा वो होता है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है. युवा एक अवस्था होती है, और युवा अवस्था का सीखने का कोई न तो उम्र होता है न समय होता है. तो एक बार जोर डालें आप सभी के लिए. और जो दूसरी शख्सियतें जो हमें इंट्रोड्यूस कर रहे थे, इनके बारे में एक बार कहना चाहूँगा कि गुजरात एसएमईज को स्ट्रॉन्ग करने में और स्ट्रेंथन करने में डॉक्टर जैमिन अंकल का जितना कंट्रीब्यूशन रहा है शायद से उतना किसी का नहीं रहा होगा. तो एक बार जैमिन अंकल के लिए भी जोरदार तालियां. बिल्कुल. Well said. Coming back to your question, Amit. So I started my business in 2007 with the seed capital of 5,000 rupees. मैं 5,000 रुपये अमाउंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे एक एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट का पता लगता है कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आजकल तो फंडिंग के पीछे हम लोग भागते हैं, लेकिन जब अगर आप 5,000 से शुरुआत करते हो तो आपका एक माइंडसेट होता है कि मुझे एक लीन बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द लीन बिजनेस मॉडल कि मिनिमम एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम आउटपुट. Absolutely. तो ये थॉट प्रोसेस पहले दिन से मेरे पास रही. 2-3 आंकड़े मैं आपको बताता हूँ. 2007 the first year turnover was 10 lakh rupees. It has grown to around 7.5 crore in 2013 with a CAGR of 100%. ये ग्रोथ रहा. इसमें सेल्स और मार्केटिंग का जो एक्सपेंडिचर आ रहा था दैट वाज अराउंड 2.5%. मतलब अगर आप 7.5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसका अगर आप 2% निकालते तो आप 15 से 16 लाख रुपया सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर खर्च कर रहे थे. फिर डिजिटल की शुरुआत हुई, गूगल आया, व्हाट्सअप आया. आपने जो सेल्स करने के तरीके थे वो बदले. पहले हम कोल्ड कॉलिंग करते थे, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचते थे, फिर तरीके बदल गए. कल्चरल शिफ्ट आया एक. टुडे द कंपनी साइज इज अराउंड 55 करोड़. Still, my sales and marketing budget has been reduced from 2% to 0.6%, and that is because of the digital tools and digital sales and marketing. तो ये जो एक कल्चरल शिफ्ट होता है, इसको आपको एडॉप्ट करना ही पड़ेगा कि 2% सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट से अगर आपका रेवेन्यू बढ़ भी रहा है तो प्रोपोर्शनली सेल्स एंड मार्केटिंग की कॉस्ट हमने रिड्यूस की. जब वो आप रिड्यूस करते हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट हुआ. बिल्कुल. तो आई थिंक टुडेज मेरा एक भी सेल्स बंदा फील्ड पर माल बेचने के लिए नहीं जाता है. इट्स अ पुल स्ट्रैटेजी. एवरी कस्टमर इज कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, वी आर नॉट गोइंग टू देयर डोर्स. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, 2013 में भी 4 सेल्स वाले थे और आज भी 4 सेल्स वाले. जो 2013 में 7 करोड़ टर्नओवर था और आज क्लोज टू 55 करोड़ है. So this is a brief from my side to start this session. Interesting. Thank you. विनोद, आपने बहुत अच्छी बात कही, एंड I'd just like to add कि एक पुरानी कहावत थी कि मार्केटिंग में आप 50% पैसा वेस्ट करते हैं पर आपको ये नहीं पता कौन सा 50%. डिजिटल मार्केटिंग एक फील्ड है जिसमें आप 1 रुपये का भी हिसाब कर सकते हैं कि क्या ये 1 रुपया वेस्ट हुआ या इससे रेवेन्यू आया. सो आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट विनोद इज सेइंग, एंड थैंक यू फॉर दैट. थैंक यू. So I would quickly move on to Sandeep. Sandeep, you have a lot of experience in terms of lead generation. So could you please share some insights कि MSME अपने revenue कैसे बढ़ा सकते हैं digital transformation करके? Sure, Amit. So thank you so much for having us today. Actually, with respect to the MSME, अभी जो digital transformation अब काफ़ी
टाइम से आफ्टर इंडिया में मैं देख रहा हूँ लास्ट 5 ईयर से, जब से जियो इंट्रोड्यूस हुआ है, काफ़ी अवेयरनेस आया है लोगों में कि हमको इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना चाहिए। और कोविड के बाद से तो काफ़ी पुश मिला है और काफ़ी लोग इस पे एक्टिव हो रहे हैं। बट आई स्टिल सी कि अगर आपको डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको अगर लीड्स जनरेट करनी है, आपका रेवेन्यू बढ़ाना है, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई 2 थिंग्स। मेन इज़ इनबाउंड लीड्स जो कि ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड होके आती है, एंड देन सेकेंड वन इज़ आउटबाउंड लीड्स। सो फॉर एग्जांपल दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। जितनी ज़्यादा आप डिजिटल टूल्स यूज़ करोगे, होगा क्या कि आपका फॉर एग्जांपल वेबसाइट हो गया, आपने फेसबुक कैंपेन्स रन कर दिया, आपने अच्छा एसईओ करवा दिया है आपके वेबसाइट्स पे, आप कोल्ड ईमेलिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो प्रॉस्पेक्ट है जो वो आपकी वेबसाइट देखेगा, आपका पूरा सोशल प्रोफाइल देखेगा, उसको इंटरेस्ट जाएगा, एंड देन वो आपके पास इंक्वायरी करेगा, विच इज़ दी इनबाउंड लीड, मतलब हाईली क्वालिफाइड लीड आएगा आपको। तो लीड्स बहुत कम आएंगे आपको, लेकिन इंटरेस्टेड लोग ही आपके साथ कनेक्ट होंगे, विच इज़ कि आपका लीड टू कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, मीन्स कि आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब ये इनबाउंड लीड्स जो मैंने कहा, जो कि हाईली इंटरेस्टेड लीड्स आती हैं यूजिंग डिजिटल टूल्स। आउटबाउंड लीड्स में कैसा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जीबिशंस में जा रहे हो या आप कोई मीटअप्स या नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हो, आपने सबको कार्ड्स दिए, आपने सबके आपके बारे में बताया, सो आप 1-on-1 कितने लोगों को बता पाओगे? ठीक है, इवन आप कॉल्स कर रहे हो फॉर एग्जांपल 100 कॉल्स अ डे, सो अगेन वो आउटबाउंड एक्टिविटी हुआ। आपके पास 10,000 लोगों का एसएमएस का डेटा है, आपने एसएमएस किया, अगेन वो आउटबाउंड लीड हुआ, आउटबाउंड टेक्निक हुआ। सो वहाँ से जो लीड्स आएंगी, सो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो मतलब मान लो आपने 100 लीड्स जनरेट किए हैं आउटबाउंड टेक्निक से, सो उसका लीड टू क्लोजिंग रेशियो काफ़ी इफेक्टिव नहीं होगा, आपका टाइम ज़्यादा बिगड़ेगा और आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। जबकि अगर आप डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके लीड्स जनरेट करोगे तो लीड्स कम जनरेट होगी, लेकिन आपका रेवेन्यू ज़्यादा उससे इफेक्टिवली जनरेट होगा। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड कि इफ़ यू गाइज आर स्टार्टेड यूजिंग डिजिटल टूल्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी पेशेंस, क्योंकि इनबाउंड चैनल्स को सेट करने में आपको 2 से 3 साल लगेंगे, जो कि बहुत सारे लोग जब डिजिटल टूल्स यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स, क्योंकि मेरा काफ़ी इंट्रैक्शंस रहता है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, इनफैक्ट सानंद जीआईडीसी, वटवा जीआईडीसी, सो उनको ये समझ नहीं आता कि इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो भी चीज़ें की है, फॉर एग्जांपल के अखबार में एड्स दे दी तो चलो कॉल आ गए, तो तुरंत रिजल्ट मिलता है, जैसे कि हाँ ये तो वर्क करता है। लेकिन अब जैसे एसईओ करना स्टार्ट किया तो यार 1 साल हो गया, अभी तक एक भी लीड्स जनरेट नहीं हो रही, क्या बात है। सो उनको ये समझ में नहीं आता है कि इनबाउंड चैनल्स को सेट करने में मिनिमम 3 साल लगेगा, अब अच्छे तरीके से आपकी चैनल को वर्क करने में। सेम थिंग हैपन विथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उसमें ठीक है पेड कैंपेन्स रन कर दिए तो इंस्टेंट आपका एड्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपको लुक लाइक ऑडियंस ने काफ़ी सारा डेटा गैदर करना पड़ता है पहले। सो मेक श्योर जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर जा रहे हैं, यू गिव 3 years टू एनी एजेंसी और एनी पर्सन, आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस बहुत कम है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास कोई निश प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में बहुत कम लोग बनाते हैं, तो अगर आपने उसको प्रमोट किया तो आपका विजिबिलिटी बढ़ गया तो आपको लीड जनरेट हो जाएगी। तो थैंक यू संदीप फॉर दैट इंटरेस्टिंग इनसाइट्स कि इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है और कैसे एक्सपेक्टेशन होने चाहिए। मेरे एक स्टार्टअप के मित्र थे, उन्होंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग का वन ऑफ द अमेजिंग थिंग इज यू कैन गेट लीड्स एंड मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिफरेंशिएटर है, एज ही सेड कि टीवी होता है या रेडियो एडवर्टाइजिंग है, डिजिटल मीडिया इट टेक्स टाइम बट वंस इट डज देन इट जनरेट्स मनी राउंड द ईयर। सो थैंक यू फॉर दैट अमेजिंग इनसाइट संदीप। एंड इन सब के साथ में बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर हम कई चीज़ों में सतर्क नहीं रहे तो जो हमने प्रोग्रेस किया हम जीरो से नीचे भी आ सकते हैं। तो वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ अमेजिंग पर्सन लाइक ध्रुव इन आवर पैनल टुडे। सो ध्रुव, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस में, आप इसके बारे में कुछ अगर बताएं, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हम प्रॉब्लम में ना आ जाएं एज अ कंपनी। सो फ्यू वर्ड्स प्लीज़। पोस्ट कोविड के बाद हम लोग जब बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, जैसे सर ने बताया जियो के सिम कार्ड्स आए, 3G से 4G पे डाइवर्ट हुए, 4G से 5G पे डाइवर्ट हुए, तो धीरे धीरे
प्रिंट मीडिया से ज़्यादा भी हम लोगों ने एडवांस होर्डिंग्स देखना स्टार्ट किया, एलईडी होर्डिंग्स आ गए, एफएम्स में हमारी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स हो गई, फिर डेटा डिजिटली ट्रैवल करना बहुत स्टार्ट हो चुका था। कोविड के बाद वी कैन से दैट इंडिया में 90% चीज़ें डिजिटल हो चुकी है। नॉर्मल सा एक पेमेंट हो या बड़ा सा बड़ा घर भी क्यों ना लेना हो, मतलब घर पे बैठे बैठे लोन अप्रूव हो जाना, घर पे बैठे बैठे अकाउंट ओपन हो जाना, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होना, वीज़ा की डेट्स मिल जाना। इवन यूएस की जो एम्बेसीज होती है उन लोगों ने भी कोविड के टाइम पे जो मोस्ट विजिटर्स थे और जो फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स थे या जो हम लोग बोलते हैं मोस्ट वीआईपी पर्सन्स थे, उन लोगों को ई वीज़ाज़ भी दिए, मतलब ऑनलाइन वीज़ाज़ इंटरव्यू कंडक्ट करके भी वीज़ाज़ लिए। सो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ इंडिया में। हम लोग 5 स्मार्ट सिटी से 14 स्मार्ट सिटीज़ तक पहुंच गए, मेट्रो से बुलेट ट्रेन तक पहुंच गए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स गुजरात में भी देखो, पहले सिर्फ अहमदाबाद था तो धीरे धीरे राजकोट हुआ, आज सूरत हो गया आज ही की न्यूज़ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो है। सारे बिजनेस में जितना भी जीडीपी हमारा इंडिया का बढ़ रहा है, इन सब में मोस्ट वर्किंग सेक्टर जो है वो है हमारा एसएमई और एमएसएमई। इसमें कंटिन्यूस फाइनेंस हमारा ट्रैवल करता है। लार्ज एंटरप्राइज एमएनसीज में डेट्स होती है, क्वार्टर्स होते हैं, एक लिमिटेशन आता है कि 3 मंथ्स 6 मंथ्स में कोई लार्ज अमाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, बट एमएसएमई और एसएमई रोज ट्रांजेक्शन करता है। तो मोस्टली जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जिसको हम लोग हैकर्स बोलते हैं, फ्रॉड करने वाले फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैम करने वाले लोग, ये लोग सबसे ज़्यादा एसएमई और एमएसएमई को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि इनके बैलेंस अकाउंट, इनके बैंक अकाउंट्स कभी खाली नहीं मिलेंगे। एक पल कभी भी कोई बड़ी कंपनी होगी, उसकी बैलेंस शीट कम हो जाएगी, उसके अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा, बट एमएसएमई और एसएमई वालों के अकाउंट में कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके अकाउंट में पैसा ना हो। एक छोटी सी छोटी ग्रॉसरी शॉप चलाने वाले, डेयरी चलाने वाले, मैं तो बोलता हूँ एकदम नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, जिन लोगों के साल के 2-3 करोड़ का टर्नओवर है, उन लोगों के पास मिनिमम 1 लाख रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ का बैलेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, विच दे कीप फॉर देयर इमरजेंसी। Now, what the thing is that any hacker or any cyber criminal, they have only 2 focus. आज अगर मुझे कोई इंडस्ट्री को टारगेट करना है या इंडिविजुअल पर्सनालिटी को टारगेट करना है एज एन हैकर, तो 2 ही मोटिव होता है, टू स्टील द डेटा और टू गिव द फाइनेंशियल लॉस। नाउ व्हाट द थिंग इज दैट एमएसएमई और एसएमई को एक और प्रॉब्लम है, बजट इश्यू रहता है। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कराना चाहते हैं, बट हम लोग हार्डली 30 to 50,000 तक जा सकते हैं मंथली, उससे ऊपर हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। बहुत बार ये होता है कि हम लोगों ने खुद के 1-2 लोगों को हायर कर लिया, इंटर्न्स को रख लिया, तो ओपन सोर्स टूल्स का यूज़ कर लेते हैं। हम लोग जो हमारा डेटा डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी कंटेंट है, पर्सनल डेटाज है, जो हम लोग शेयर कर रहे हैं, ये सब कुछ एक ओपन सोर्स और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है। तो हम लोग जितना भी सिक्योरिटी, जैसे सर ने बताया इनबाउंड, हम लोग इंटरनल कितना भी सिक्योर कर लें, बट आप एक्सटर्नली ऑब्वियसली ब्रीच्ड आउट है। अगर इंडिया में एक एक्टिविटी रन होती है, एक कैंपेन रन होता है कि जैसे समझो सिक्योर भारत के नाम पे एक कैंपेन रन हो गया और उसमें बोला कि लेट्स चेक के 140 करोड़ की जो हमारी पॉपुलेशन है, इसमें से जितने भी लोग एमएसएमई और एसएमई बिजनेस कर रहे हैं, उनका डेटा चेक करते हैं कितना लीक है। आई एम डैम श्योर इट विल बी मोर देन 95% प्लस जिन लोगों के डेटाज ब्रीच आउट हो गए। क्योंकि आप लोग देखिए, आधार कार्ड का डेटाबेस हैक हुआ, केवाईसी हमारे जो यूएडीआई का वो हैक हुआ, बैंक्स हैक हो जा रही है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, यस बैंक्स है, बैंक्स हैक हो रहे हैं, एनआईसी का डेटा हैक हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया साइबर सिक्योरिटी को लेके सीरियस नहीं है। इंडिया को भी साइबर सिक्योरिटी 10 साल पहले पता चल गया था, बट कोई भी चीज़ में टाइम लगता है, एंड इन दिस वी नीड अ प्रोएक्टिव मेजर्स। Cyber security is a proactive measures where you need to take the measures before the attack. So ecosystem generate हो रहा है, रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, एक डाइटिशियन की तरह इसका भी एक पूरा डाइट प्लान जैसे होता है, ऐसे एक साइबर हाइजीन प्लान बन चुका है जो हर एक एसएमई और एसएमई इंडस्ट्री यूज़ करेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग फिनेंशियल लॉस और डेटा स्टील होने से हम लोग बच सकते हैं। Interesting.
ध्रुव, हम आपसे सब्सिक्वेंटली और जानना चाहेंगे एज वी मूव ऑन विद द सेशन कि आपने साइबर हाइजीन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी. वी विल कम बैक टू दिस एंड आई वुड लव टू नो मोर एंड आई एम श्योर द ऑडियंस वुड लव टू नो मोर. थैंक यू. एंड नाउ आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू रिक्वेस्ट अभिषेक. अभिषेक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और टेक्नोक्रेट है, जैसे जयमिन सर ने बताया, और ये बहुत प्रोलिफिक स्पीकर हैं. ये बहुत सारे फोरम्स में काफ़ी चर्चा करते हैं इस बारे में. तो आपसे अभिषेक जी हम जानना चाहेंगे कि एमएसएमई सोशल मीडिया चैनल्स को कैसे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ग्लोबलाइज करने के लिए अपने आप को. अगेन जब हम बात कर रहे हैं, अगेन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ जो टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ ज़्यादातर जगह पे, और आज मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ. आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका टारगेट एरिया क्या है. सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल्स हैं और उनके थ्रू आप कम्युनिकेट करना इज़ वेरी ईजी. Nowadays, if you want to communicate something to all your clients, you will just push a message through a WhatsApp broadcast or a WhatsApp group, and everyone will get that message. Let's talk about 20 years before that. Sir, आप लोग करते थे, कैसे करते थे? एक जन को आप एक इन्विटेशन भेजना है, you go and give it to everyone. Again, it would be a 1 month task to give 1,000 invitation. Now you are doing it in a half a millisecond. Yes. Now, if you can reach so many people, you need to understand what Sandeep was saying कि आपका target audience क्या है? What is your strategy behind it? If you can clearly mention your strategy behind getting on which kind of social media panel for your machine, for your any equipment or product or even a service, for chartered accountant, finance professional and a technocrat, for me LinkedIn is what I will go with. For a person who is selling, say for example fabric or chemicals, for him it is always WhatsApp and those kind of systems where they can communicate. For a fashion brand, it may be Facebook as well as Instagram, food, Instagram. So you have to understand what kind of audience you are looking at, and उस audience के हिसाब से you can always select the agency and select the target market. आप कोई भी चैनल पे जाएंगे, आपके पास एक ऑप्शन होता है टारगेट मार्केट सिलेक्ट करने का. बी इट फेसबुक, बी इट लिंक्डइन, बी इट योर इंस्टाग्राम और एनी चैनल, यू कैन सिलेक्ट योर टारगेट मार्केट एंड उनकी भाषा में आप उनको बताइए कि आप कर रहे हैं क्या. एंड एआई के आने के बाद टू क्रिएट कंटेंट इज नॉट अ बिग डील. आप कंटेंट किस लिए क्रिएट कर रहे हैं? किसी एडवर्ड या एनालिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं. आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस आपके पोटेंशियल क्लाइंट को समझ में आए. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन. योर व्हाट यू वांट टू से हैज बीन कम्युनिकेटेड और नॉट. सो दैट वे वी कैन यूज सोशल मीडिया एंड रीच मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल. सो अभिषेक, थैंक यू फॉर दैट. आई थिंक अभिषेक जस्ट सेड कि लिंक्डइन एंड व्हाट्सएप तो हम यूज़ कर ही सकते हैं. एडिशनली एआई के थ्रू हम अपनी इफेक्टिवनेस भी बढ़ा सकते हैं आउटरीच में. सो दैट्स डेफिनेटली अमेजिंग टेक अवे फ्रॉम देयर. एंड संदीप, आई जस्ट कम बैक टू यू अगेन. आप थोड़ा ग्रैनुलर डिटेल में अगर हमारे ऑडियंस को बताएं कि प्रॉस्पेक्ट्स एंड लीड जनरेशन के लिए स्पेसिफिक क्या किया जा सकता है, कि अगर वो आज अपने घर जाएँ तो आज क्या कर सकते हैं कि आज वो बिजनेस जनरेट कर सके. सम फ्यू टिप्स इफ यू कैन इम्पार्ट टू द ऑडियंस. श्योर. सो सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि आपकी ऑडियंस है कहाँ पर और वो लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कहाँ करते हैं. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मेरे ही क्लाइंट का अगर केस स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ. सो ही इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग VRF ब्रांच पाइप्स. ठीक है. सो मोस्टली उनका जो क्लाइंटेल है इट इज़ अ B2B क्लाइंटेल. ठीक है. दे आर नॉट B2C. सो अब उनका जो क्लाइंटेल है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलने वाला. ठीक है. सो फॉर हिम व्हाट इज़ द राइट वे कि मोस्टली उनके जो क्लाइंटेल्स है आइदर या तो उनको गूगल पे सर्च करेंगे या तो उनको लिंक्डइन पे सर्च करेंगे. दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव चैनल जहाँ पर उनको प्रॉस्पेक्ट मिल सकते हैं. सो व्हाट वी हैव डन कि अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा सा वेबसाइट होना चाहिए.
जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन हो। उससे एक लेवल और एडवांस जाते हैं, क्योंकि B2B क्लाइंटेल है और सिर्फ इंडियन रीजन मेरा टारगेट नहीं है, वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन रीजन, US रीजन, रशिया। तो अगर ये 3 रीजन के अंदर मुझे कनेक्ट करना है, मुझे पहुंचना है, सो व्हाट आई कैन डू, हमने उनको एक स्ट्रेटजी सजेस्ट किया, व्हाई नॉट हम वहाँ की लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट कन्वर्ट करें, नॉट कन्वर्ट, क्रिएट करें। सो हमने ऐसा सेटअप किया कि अगर कोई बंदा जर्मनी से हमको एक्सेस करने जा रहा है तो उसको जर्मन लैंग्वेज में वेबसाइट दिखेगा, अगर कोई रशिया से ओपन कर रहा है तो उसको रशियन लैंग्वेज में वेबसाइट दिखेगा, अगर कोई US से ओपन कर रहा है तो उसको इंग्लिश के अंदर, क्योंकि वो वहाँ का मेन लैंग्वेज है। तो आपने क्या किया, अपने आप को जो सामने वाला जैसा है, जिस रीजन का है, जिस तरीके से उसको पसंद है, उस तरीके से आपने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। सो वहाँ से आपका एक रीच बन गया। तो वेबसाइट बनाना है तो इस लेवल तक सोचना है कि मेरे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो कहाँ रहते हैं, कौन सा लैंग्वेज समझते हैं और उनको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मुझे पहुँचानी है। सो एक तो सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हुआ। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि वो लोग क्या सर्च करते हैं। अब ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि मुझे VRF पाइप चाहिए, ठीक है, गूगल में जाके वो डिफरेंस सर्च करेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ के कितने सप्लायर्स है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ यूजिंग दिस थिंग्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो लोग क्या सर्च करते हैं गूगल के अंदर। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू प्रिपेयर लॉट ऑफ ब्लॉग्स और कीवर्ड्स जो आपको फिट करने पड़ेंगे आपके वेबसाइट्स के अंदर। उसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको SEO करवाना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई सर्च कर रहा है उस टॉपिक के बारे में तो आपका वेबसाइट ऊपर आए या आपके वेबसाइट पे वो लोग लैंड हो जाएं और वहाँ से फिर आपके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स उनको मिल सकता है। सो एक तो ये हो गया कि हमने पूरा एक चैनल सेट कर दिया, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बना के अलग अलग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और उसको अच्छा सा रीच कर दिया। सो बार बार लोग आपके वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे और आपको लीड्स जनरेट होगी और इट विल टेक 2 to 3 years। ऐसा नहीं है कि विदिन 1 year आपका ये सब पूरा सेटअप हो जाएगा। देन अब लिंक्डइन के ऊपर आते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सेट हो गई। अब लिंक्डइन पे आप क्या कर सकते हो कि जितने भी ऐसे प्रोस्पेक्ट हैं जो आपको लगता है कि अलग अलग रीजन में बैठे हैं, आप उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो पहला तो। सो अगर उनको सर्च आउट करना है, फॉरम्स में जाना है, काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, देन आप उनके साथ बातचीत स्टार्ट करिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और वो लोग जहाँ जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उनके अकाउंट्स पे आप जाके एंगेज करिए। सो देयर माइट बी अ चांस कि आपको कुछ वहाँ से फीडबैक मिलेगा या रिस्पॉन्स आएगा। देन उसके अलावा लिंक्डइन यूज़ करने का एक दूसरा एडवांटेज है जो मैं मेरे काफ़ी सेशंस के अंदर भी शेयर करता हूँ। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहूँ, आज से फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप अगर आपको यूज़ करना है तो आपको 200 रुपये पर प्लेटफॉर्म 100 रुपये देने पड़ेंगे पर मंथ। फेसबुक का 100 रुपीज़, व्हाट्सअप का 100 रुपीज़ एंड इंस्टाग्राम का 100 रुपीज़। आप में से कितने लोग प्लेटफॉर्म यूज़ करना बंद कर दोगे या मतलब फिर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल नाउ विल यू बिलीव कि जो लिंक्डइन जो लोग यूज़ करते हैं 40% ऑफ द ऑडियंस ऑफ लिंक्डइन, जो अगर आप इफ़ यू इमेजिन ऑलमोस्ट 900+ मिलियन यूज़र्स हैं अभी लिंक्डइन के अंदर, उसमें से 40% यूज़र्स उसका प्रीमियम यूज़ करते हैं। मतलब दे आर पेइंग टू माइक्रोसॉफ्ट टू यूज़ अ प्रीमियम फीचर्स। So I think Sandeep, please. So लिंक्डइन पे लोग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं जाते हैं। वाइल अदर प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं जब टाइम पास करना हो। सो यू शुड टेक सीरियसली लिंक्डइन अगर आपका प्रोस्पेक्ट वहाँ है तो आई थिंक व्हाट संदीप इज ट्राइंग टू से कि वेबसाइट एंड एसईओ स्ट्रैटेजी तो अलाइन होनी चाहिए, बट ये चीज़ के लिए एजेंसी की ज़रूरत है। हम जो आज ये कर सकते हैं कि लिंक्डइन को हमें सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहिए, एज जैमिन जी ऑल्सो मेंशन इन द इनिशियल स्टेज, एंड उसमें एक सेल्स नेविगेटर या इस टाइप के एडवांस टूल्स एंड पेड टूल्स को यूज़ करना चाहिए, सो वी कैन एक्सप्लोर एंड गेट मोर बिजनेस। तो थैंक यू फॉर दैट इनसाइट संदीप, एंड विल कम बैक टू योर क्वेश्चन नाउ। ध्रुव, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक्चुअली आई एम श्योर कितने लोगों ने ऑडियंस में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सुना है ना?
it's a very precise thing that has come, and the compliance is a very serious matter. So no better than Dhruv to take us through कि क्या rules and regulations है MSMEs को follow करने पड़ेंगे, ये critical, ये जो बदलाव आ गया इंडिया के लैंडस्केप में. ये जो बिल है ये हम बोल सकते हैं कि इंडिया के लिए सबसे पहला बिल है साइबर सिक्योरिटी को और स्पेशली डेटा एंड प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए. यूएस में हम लोग देखते हैं NIST फ्रेमवर्क है जो पर्टिकुलरली डेटा एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे काम कर रही है. यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको वहाँ पे GDPR मिल जाएगा जो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स पे काम करते हैं. और इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज़ है, इवन अहमदाबाद में भी बहुत सी कंपनीज़ है जो GDPR कंप्लाइंट करती है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, इन विच शॉर्ट वी कैन से DPDP, ये बिल लाने का मेन रीज़न ये था, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ IT टेक्नोलॉजी में there was one of the body which is known as CERTIN, Computer Emergency Response Team. Basically, Computer Emergency Response Team always give the alerts to the citizens of India, to the organizations of the India for any new cyber attack or any new viruses or the malware which has been entered to this particular perimeter area of the Indian boundaries in the networks. जैसे आज कल सैमसंग यूज़र्स के लिए आया था कि एंड्रॉयड 12, 13, 14 इज़ बीन वनरेबल टू द मालवेयर, CERTIN ने दिया था. आज सुबह से न्यू अलर्ट है दैट ऑल दी प्रोडक्ट्स ऑफ द एप्पल विच इन्वॉल्व्स द मैकबुक, पर्टिकुलर आईपैड्स एंड द आईफोन्स, दे आर वनरेबल राइट नाउ टू द सम ऑफ द मालवेयर. सो ऐसे रेगुलर अलर्ट्स तो आ रहे हैं. इंडिया में हम लोग बात करेंगे तो लार्ज एंटरप्राइज, MNCs, IT कंपनीज, स्टॉक ब्रोकर्स, बड़े से बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, दे आर वर टेकिंग द सीरियस थिंग फॉर द साइबर सिक्योरिटी एंड दे हैव इम्प्लीमेंटेड अ tier level 1 security of the particular this infrastructure in their IT organizations. लास्ट 2 years में मेजर साइबर अटैक्स की बात करते हैं. एम्स में साइबर अटैक हुआ, 300 करोड़ की रंसम अमाउंट आई. सन फार्मा हैक हुई, आपका डोमिनोज हैक हुआ, HDFC बैंक हैक हुआ, SBI का योहो अकाउंट हैक हुआ, मैरियट होटल का डेटाबेस हैक हुआ, मोबीक्विक करके जो ऐप आता है वो हैक हुआ, पेटीएम हैक हुआ, फ़ोनपे हैक हुआ, आपका एक और अभी रिसेंटली फाइनेंस में से है मोतीवाल, जो फाइनेंसिस होता है वो हैक हुआ. इवन दी गवर्नमेंट डेटाबेस गॉट ब्रिच आउट. सो ये जो हैक हो रहा है, इस हैक में अभी हम लोगों को सीरियस क्या होना है, जो भी इंडस्ट्रीज़ है, SME है या MSME है, जो लोग पर्टिकुलरली PII एंड PHI, पर्सनल आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन एंड द पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये दो कैटेगरी के जो भी लोग डेटा स्टोर करते हैं, उन लोगों को पर्टिकुलरली दे नीड टू कीप द साइबर सिक्योरिटी एट देयर लेवल. वाई? बिकॉज आप लोग Gmail, आउटलुक, याहू या कोई भी मेल बॉक्स यूज़ कर लो, या आप कुछ भी गूगल क्लाउड यूज़ कर लो, सैमसंग क्लाउड यूज़ कर लो, दैट इज़ दे हैव देयर ओन सिक्योरिटी. They don't keep your data safe, because when you upload your data from your devices and using your own network, that data goes from your device to their particular server. तो ये जो बीच का मोड होता है ना, जिसको हम बोल सकते हैं एक हाईवे जहाँ पे डेटा ट्रैवल हो रहा है, ये हमको सेफ रखना जरूरी है. अगर ये सेफ नहीं करोगे तो क्या एक्शंस होंगे, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उसके नॉर्म्स लेने में आए. जैसे हमारे वहाँ पे आपको भी पता है, इंडिया में पहले टैक्स बहुत कम पे करते थे लोग, आज भी 18 to 20% रेशियो चल रहा है, फिर भी अच्छा टैक्स अमाउंट कलेक्ट हो रहा है. तो ये रेशियो बढ़ेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि रूल्स बने, रूल स्ट्रिक्ट हुए, रेट्स पढ़ना स्टार्ट हुई, GST के सामान्स आना स्टार्ट हुए लोगों को. हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई सिटीजन्स के साथ कि गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है और रीज़न क्या है. साइबर सिक्योरिटी के ये जो बिल आया है, ये बिल में कमेटी बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे DPDP कमेटी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड कमेटी, इन विच इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स विल बी टेकन अप, bureaucrats will be there, particular scientific officers will be there who will conduct the such raids, a surprise forensic raids in the bigger organizations to check their critical infrastructure, who majorly holds the PI and PHI.
जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स होते हैं, फाइनेंशियल फर्म्स होते हैं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग पब्लिक के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑन दैट डेटा, तो उन लोगों को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल कंपलसरी लगेगा. इट डजेंट मीन्स दैट आपका प्रोपराइटर कंपनी है या प्राइवेट लिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है तो हमारे रूल्स अलग है. इट्स नथिंग लाइक दैट. देर आर दी ओवरऑल समरी ऑफ 20 पॉइंट्स which covers up your 360 degree of your critical IT infrastructure to safeguard your data, and the data cannot be breached out. If this 20 points has not been fulfilled by any organizations in any nearby future, if you or your organization have a cyber attack and that particular data got breached, वो डेटा ब्रीच होने में आपका स्पेसिफिकली PII और PHI डेटा है जिसकी वजह से आम जनता, हमारी जो 140 करोड़ की जनता है, उनको कुछ इश्यू आता है या नेशन सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्ट पे कुछ इश्यू क्रिएट होता है, तो आपको ये पर्टिकुलर बॉडी DPDP बॉडी आपको अप टू 250 करोड़ का फाइन दे सकती है एज पर सीइंग द साइज ऑफ द कंपनी. Correct. So I think the takeaway from this is कि there is a checklist of 20 items and we have to start actually thinking about it. जैसे अगर इन्होंने जिक्र किया PHA रिकॉर्ड है तो उसके लिए एक HIPAA compliant hosting या जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो the takeaway is that MSMEs have to actually start seeing to avoid a huge fine in the future. Secondly, फाइन के अलावा जो एक रेपुटेशनल रिस्क बहुत बड़ी बन जाती है जो कंपनी किलर हो सकती है, तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग एज वी आर ग्रोइंग इन साइज. So thank you for those amazing insights, Rov. And Vinod, I will just come back to you. आपके Shubham Inc. and आपका water, you are a water specialist and you've grown your company from 5,000 rupees to 60-70 crore size. तो आपने सेल्स एंड मार्केटिंग का जिक्र किया, बट सेल्स एंड मार्केटिंग के अलावा अगर इनको हम अलग रखें तो डिजिटल मीडिया ने आपकी कंपनी के ग्रोथ में और फर्दर क्या कंट्रीब्यूशन किया है? प्लीज शेयर योर. सो वेरी गुड क्वेश्चन अमित. डिजिटल मीडिया एज अ टूल, तो पहले तो एक क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि डिजिटल मीडिया आजकल 80% लोग ये समझते हैं कि लीड जनरेशन करना है SEO के थ्रू. डिजिटल मीडिया एज अ बिजनेस पर्सन अगर मैं देखता हूँ तो आपका सोशल मीडिया, आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टा, SEO जो भी आप कर रहे हैं, इट इज़ अ वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर एंटायर बिजनेस. एज अ बिजनेस ऑनर मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मीडिया का? देखिए, मैं सेल्स नहीं करता हूँ, मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ. कंपनी चलाने के लिए और स्ट्रैटेजी को फॉर्म करने के लिए आपके पास डाटा की बहुत ज़रूरत होती है. फॉर एग्जांपल, आपने 8 प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए और आपने 4 सेल्स वाले लगा दिए. उन 8 प्रोडक्ट का सेंटिमेंट्स कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कैसे पता करोगे? उन 8 प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट को ड्रेन कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट को बढ़ा रहा है? ये ऐड करने के लिए आपके पास डाटा चाहिए. तो पहला पार्ट जो होता है कि SEO या SMO की हम बात करें, दैट विल इंक्रीज योर मार्केटिंग, पोजिशनिंग एंड शायद से लीड जनरेशन हो जाएगा. बट एक पॉइंट मैं संदीप की बात पे एड ऑन करने जाऊँगा जो काफ़ी SMEs मिस करते हैं कि बिफोर यू पोजिशन योर कंपनी इनटू द सोशल मीडिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ब्रांड स्ट्रैटेजी. हमारे लिए क्या होगा कि हमने लोगो बना लिया, लॉन्च कर दिया, वेबसाइट बना दी. साहब, आप जर्मनी में काम कर रहे हो तो जर्मनी का कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा बिना आपको देखे हुए? दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांड स्ट्रैटेजी. तो फर्स्ट यू डिसाइड योर ब्रांड स्ट्रैटेजी, उससे फिर आप कम्युनिकेट करिए कि सोशल मीडिया के थ्रू आपका प्रेजेंस कैसा आएगा. दैट इज़ पॉइंट 1. पॉइंट 2, लीड जनरेशन हो गया, आपने बिजनेस कन्वर्जन कर लिया. 2008 के पहले अमित, जब सोशल मीडिया नहीं था, SEO नहीं था, तो कंपटीशन कम था. आप मेरे बायर हैं, मैं आपके पास आया तो आपके पास 2 कंपनी से ज़्यादा कोटेशन ही नहीं है. करेक्ट. मेरा आपका रिलेशन जनरेट हो गया, मैं आपसे 30-40% मुनाफा ले जाऊँ. एग्री कर रहे हो आप सब लोग? करेक्ट. आज आ गया डिजिटल मीडिया, आप एक प्रोडक्ट डालिए और आपके पास 50 कोटेशन 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे. एब्सोल्युटली. कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी खत्म हो गई. अब प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे बढ़ाओगे? करेक्ट. करेक्ट. डिजिटल मीडिया पे आ गए, अब बताओ प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे? अब आपको प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए डिजिटल मीडिया और डिजिटल टूल का यूटिलाइजेशन आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग. आपका मेन पावर कितने समय काम करता है आपको पता होना चाहिए. आपके प्रॉफिट कहाँ पर लीक हो रहे हैं आपको पता होना चाहिए. आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या चल रही. सारे गुजराती बैठे, सबके मोबाइल में स्टॉक मार्केट का ऐप डला हुआ है. कितने लोगों के मोबाइल में?
100% आना चाहिए मेरे पास, है ना। डेली बेसिस पे P&L पता होता है ना, जब डिजिटल टूल नहीं था तो डेली बेसिस पे आप आपका P&L कैलकुलेट नहीं कर सकते। Very good point. Very good point. So when you talk about the profitability, it is Yes. not about the SEO and SMO. You have to implement the complete strategy to make your company profitable by using and utilizing all the digital media platform, and that is how you can increase your operational efficiency. वंडरफुल पॉइंट विनोद। आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली डेटा ड्रिवन अप्रोच से कंपनी चलानी है। जैसे अगर हम स्टॉक मार्केट का ट्रैक रख सकते हैं तो अपने बिजनेस के एक एक मेट्रिक का ट्रैक क्यों नहीं रख सकते? वंडरफुल पॉइंट। एक पॉइंट मैं डाउन करूंगा, यस, अचल बकेरी जी के साथ में था, उन्होंने एक टर्म कहा ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा है उसको वीकली बेसिस पे पता होना चाहिए कि मेरा ROC क्या है, मैंने कितना पैसा डाला और कितने % पे पैसा निकल रहा है। अगर आप ROC मेंटेन नहीं कर रहे हो वीकली बेसिस पे तो आप कितने भी अच्छे सेल्स और मार्केटिंग वाले आदमी हो, आप धंधे के लायक नहीं हो। बिल्कुल। आई थिंक वंडरफुल टेक अवे, एंड आई थिंक द ऑडियंस ऑल्सो लव्ड योर इनसाइट्स ऑन दिस वन। वंडरफुल, एंड आई विल ऑल्सो कम बैक टू यू टू एक्सप्लोर दिस पॉइंट इन द सेकेंड हाफ। लव टू हियर मोर। एंड अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आई थिंक संदीप ने मेंशन किया था और कई लोगों के ऐसे सेंटिमेंट्स हैं कि भाई ठीक है बट बजट की तो एक प्रॉब्लम होती है कि हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस इन अ बजट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टी करोड़ कंपनीज, सम ऑफ द कंपनीज आर नॉट इन टेंस ऑफ करोर्स। सो अगर एक छोटी SME को ओवरसीज एक्सपैंड करना है तो एक लो बजट में डिजिटल मीडिया के थ्रू कैसे कर सकते हैं? लव टू हियर योर एक्सपीरियंसेस। Again, we started off with a meager capital of 10,000 rupees per month for 12 months as a IT company way back in 2014. 2014 में जब हमने चालू किया, हमने एक प्रोडक्ट बनाई। 2016 में हमारी प्रोडक्ट वाज रेडी नाउ टू सेल दैट प्रोडक्ट, एंड दैट टू एट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो 4G, देयर वाज नो एक्सेस, देयर वाज नो जियो। हमारा प्रोडक्ट था क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट वी स्टार्टेड ऑफ विथ। सर, आप लोगों में से कितने लोग आज भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं विच इज़ ऑन क्लाउड? SME 1 2 3 4। हमारे टाइम पे सर 1000 SME से मिले ना। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं तो बहुत लोगों से मिलता था, 1 लाख में एक होता था, 1 लाख लोगों में एक आदमी। सो अब अगर हमारे इंडिया के अंदर 1 करोड़ बिजनेसेस हैं, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बिजनेस है, तो उस 1 करोड़ में से मेरे को कितने मिल सकते हैं मैक्सिमम? 1000 बिजनेसेस। अब उस 1000 के लिए मैं अगर मार्केटिंग करने जाऊंगा, मैं अवेयरनेस करने जाऊंगा ना, तो आई विल बी बर्नड आउट। सो आई हैव टू डू, वी डिड AB टेस्टिंग। आज AB टेस्टिंग बहुत मानी जाती है। AB टेस्टिंग का मतलब कुछ नहीं है, छोटा पैसा डाल के आप चेक करो कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो आप सोशल मीडिया पे 100 रुपए से मार्केटिंग चालू कर सकते हो, 10 रुपए से मार्केटिंग चालू कर सकते हो। तो आप 10 रुपया डाल के देखो, 10 स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि अगेन हर आदमी के पास स्ट्रेटजी के लिए कोई टॉप कंपनी या टॉप DGB नहीं होते बेसिकली। तो अगेन जब आपके पास टॉप लोग नहीं है तो आप खुद ही आपका मार्केटिंग देखने वाले हो, या आपके पास कोई एक पर्सन है जो देखने वाला है। इन जनरली इन द केस ऑफ SME यू शुड स्टार्ट विद द AB टेस्टिंग ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थोड़ा थोड़ा पैसा एलोकेट कीजिए, हो सकता है 10,000 रुपये एलोकेट किया आपने फॉर अ 3 months पीरियड और 1 month पीरियड, उस समय में इतना हम एलोकेट कर पाते थे। आज की डेट में लोग 1 लाख रुपया एलोकेट करते फॉर 3 months पीरियड फॉर 3 to 4 चैनल्स। अब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि यार कौन सा चैनल मेरी AB टेस्टिंग को सक्सेसफुली रन कर पा रहा है। एंड नाउ सिर्फ पेड कैंपेन से कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ पेड कैंपेन चला लो, जब तक पेड कैंपेन चल रहा है आपके पास लीड्स आ रही है, देन दैट टू लीड्स आर नॉट वेरी गुड। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट बोलना चाहिए, आपकी सर्विस बोलनी चाहिए, व्हाट इट इज डूइंग। एंड अगेन डूइंग अ 10,000 rupees a month can give you a very good brand awareness in the mind of your customer. So इस बेसिस पे हम चालू कर सकते हैं। और हमारा जो अगेन ऑडियंस साइज है, मैंने जो पहले बताया था, ऑडियंस टैम शुड बी वेरी स्पेसिफिक। इवन while doing
A/B testing, your TAM should be very, very clear. Yeah, I think basically, Abhishek, I agree with what you're saying. And in fact, YouTube is our friend, you know. So, you know, जैसे साइकिल सीखने के लिए आपको गिरना पड़ता है, तो similarly as he's saying, you have to experiment and do A/B testing and with a small budget, and then you get your understanding on how exactly to grow. And after the A/B testing also, it is not that ki it is a huge pull where you have to pay crores of rupees to do the marketing. Once your A/B testing is done, आप एक advertisement पेपर में advertisement देते हैं सर, शायद say for example आपका दिव्य भास्कर, what does it charge? 8 to 10 lakhs. फ्रंट पेज अगर देना है तो 10 लाख तो मिनिमम लेगा सर. 10 लाख के अंदर मेरा पूरे साल का बजट आ जाता है. Correct. And giving me far more better reach what that 10 lakhs gave me. Interesting. So again, that is very important. Interesting. So I'll have to ध्रुव, मैं फाइनली आपने जो अभी पहले बताया उससे मेरे माइंड में एक सवाल ये आता है, एंड आई क्विकली वांट यू टू टच अपॉन इट. आपने प्रॉब्लम्स तो बताई, अब इसका सोल्यूशन क्या है? एक साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस में भी आता है, तो क्या आप ये इसका समाधान देना चाहेंगे इसके तौर पे? हम लोगों ने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस देखा, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस देखा, मेडिकल इंश्योरेंस देखा. साइबर इंश्योरेंस इज़ द वन ऑफ द वेरी टॉप पिकिंग पॉइंट राइट नाउ फॉर द इंडिया. साइबर इंश्योरेंस दो तरह से यूज़फुल है. It is useful for the individual director, founder, or the particular promoter of the company, or an individual person also. It doesn't mean that कोई company होगा तो ही वो काम का है. If the person don't owns his own company, he's a freelancer or he's a consultant to the many big organizations or the SME, MSME, and he do a number of transactions, so he can also acquire the cyber insurance. Second, particularly MSME and MSME sector should have the cyber insurance. That is must. Why? If you don't have any particular full-time employee of any cyber security engineer or some CISOs in your company, but you need a cyber security insurance, because this insurance will help you at the time of damage cost for the particular this prevention or at the during this cyber security incident. Let me give you a very short case study. आपका पूरा बिजनेस डिजिटल है, ई कॉमर्स के थ्रू बिजनेस चल रहा है. आपका पोर्टल हैक हो गया, कंटेंट कुछ बदल गया, डिफेमेशन बहुत हुआ मार्केट में. अहमदाबाद का समझो स्टार्टअप प्रोडक्ट थी, जैसे आज तो आजकल जोमेटो स्विगी बहुत चल रहा है, ऐसे ही अब धीरे धीरे और भी स्टार्टअप्स आ गए जो डिलीवरी में आगे आ रहे हैं. तो उसकी पोर्टल हैक हो गई, उसका ऐप हैक हो गया, उसकी वजह से डेटाबेस भी लोगों का चला गया, उसके ऊपर कंटेंट ऐसा आ गया जो अनलॉफुल था, डिफेमेशन हुआ. नाउ यू नीड टू डू अ रिफ्रेशमेंट ऑफ योर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दैट विल बी गेट यू अ न्यू कॉस्ट. आपका ऑलरेडी बजट इश्यू है, उसमें बीच में एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होना, इसको इन्वेस्टिगेट करने की एक कॉस्ट है, इसको प्रिवेंट करने की एक कॉस्ट है, और उसको वापस से न्यू इंफ्रा बनाने की एक कॉस्ट है. उसी के साथ साथ में न्यू पॉलिसी बनाने का एक कॉस्ट है. तो ये जितना भी कॉस्ट है ना, ये सब कुछ आपको बैंक देगी. बट वुड यू लाइक टू शेयर सम, आई एम श्योर पीपल वुड लव टू नो कि इसकी क्या खर्चा आएगा, या व्हाट इज द रफ? बेसिकली द साइबर इंश्योरेंस, इफ वी टॉक फॉर एनी इंडिविजुअल पर्सन, इट्स जस्ट 2000 रुपीज पर ईयर. वाओ, ठीक है. और कोई बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हम लोग बात करते हैं प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज, जिनका टर्नओवर 50-100 करोड़ का है, तो उनके लिए जैसे लोगों के लिए साल का सिर्फ 10 लाख रुपए का खर्चा है, जिसके सामने 1 ईयर तक का रिम्बर्समेंट बैंक में से मिलता है इन द टर्म्स ऑफ साइबर इंश्योरेंस. बिकॉज दिस इज ऑल दी पॉलिसीज विच हैज बीन मेड बाय दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to safeguard the nations and the particular organizations who are doing the business in India for the growth of GDP. Interesting. ध्रुव, आई थिंक आपका ये सवाल जवाब सुन के मैंने तो डिसाइड किया कि आई एम टेकिंग दैट 2000 रुपीज इंश्योरेंस. हाउ मेनी इन द ऑडियंस आर विद मी? You know, great. I mean, this is a must do. Then it's such a not a cost-effective method. We have to go for it. Thank you so much for that input. Thank you so. And संदीप, मैं आपके पास दोबारा आना चाहूँगा. आप 2 या 3 एक challenges आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनियां करने जाती हैं, तो 2 या 3 कॉमन क्या चैलेंजेस आपने ऑब्जर्व किया, आप क्विकली अगर बता सके तो? मोस्टली एक तो
जो ओनर्स होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे टाइम से ये एजेंस मतलब उनका जो फैक्ट्री है या जो बिज़नेस है रन कर रहे होते हैं, एंड देन क्योंकि अब उनको कुछ लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट होना पड़ता है क्योंकि उनके काफ़ी सारे कस्टमर्स उनके काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स डिजिटली हो चुके हैं, सो उनका बिजनेस डाउन जा रहा है, तो उस वजह से मोटिवेट होकर जब वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, सो दे वांट क्विक रिजल्ट्स। और दूसरा, उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कि ये पूरा वर्क कैसे करता है। दे जस्ट थिंक कि मैंने 5 लोगों से बात की, इसने बोला इतने में हो जाएगा, इसने बोला इतने में हो जाएगा, एंड दे जस्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दिस स्टॉप्स, एंड देन आफ्टर 4 or 6 months उनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये तो वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए। सो चैलेंजेस यही है कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट वेंडर्स जो उनको पहले एग्जीक्यूट करे कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। दे थिंक कि जहाँ से मुझे सस्ते में मिलेगा वही मेरे लिए बेटर है, सो विच इज़ नॉट। उनको खुद को पहले एक पूरा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि मैं जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ वो कैसे वर्क करेगा, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और मुझे उस हिसाब से कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सो एक ये काफ़ी चैलेंज जो मुझे दिखता है मोस्टली कि वो बहुत आफ्टर 4 or 6 months में क्विट कर देते हैं। wrong expectations basically. Wrong, yes. Okay. Yes. Okay. So- So I think, yeah, would you like to quickly add something else? We are running a little behind time, so if you have something to add, I would love to hear. एंड देन फिर वो क्या करते हैं, इस चीज़ जब ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि मेरे लिए कोई सही बंदा नहीं है, देन दे वॉट ट्राई टू डू इट कि मैं किसी को हायर कर लेता हूँ मेरे एजेंसी के अंदर, Interesting. सो वो मेरा काम करेगा और मैं उसको जैसे गाइड करूँगा वो वैसे करेगा तो ही काम होगा, क्योंकि उनको वही माइंडसेट है ना, मैं बताऊँ वैसे करो। सो वो भी अगेन मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप किसी बंदे को हायर करोगे, आपको खुद को पहले तो नॉलेज नहीं उतना कि ये सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, एसईओ कैसे वर्क करता है, डिजिटल मार्केटिंग वर्क कैसे करता है, एंड आपने किसी को ये हायर किया कि अब मैं इसको 20-25 हज़ार दूंगा तो ये मेरे लिए काम करेगा और तो ही काम होगा, विच इज़ अगेन रॉन्ग। वहाँ पर भी वो गलत होते हैं, तो उनका काफ़ी टाइम बिगड़ जाता है, देन इवेंचुअली उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे काम की नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो आपने 2 चीज़ों का जिक्र किया, एक आपने बोला कि चीपेस्ट अप्रोच पहले लेते हैं, वो काम नहीं करती तो देन दे स्टार्ट डूइंग ऑन DIY बेसिस। तो दोनों ही अप्रोचेस से, एंड आई थिंक दे आर वेरी करेक्ट थिंग्स यू टच्ड अपॉन। एंड विनोद, मैं आपने जो जिक्र किया था, मैं उस पर वापस एक बार लौट के आना चाहूँगा। आपने प्रॉफिटेबिलिटी और मेट्रिक्स और ROC के बारे में बता रहे थे, सो दैट काइंड ऑफ इवोक क्यूरियोसिटी इन माई माइंड, आई एम श्योर द ऑडियंस। वुड यू लाइक टू टेल मोर अबाउट हाउ प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डिजिटल? सो Please वेरी गुड पॉइंट, say क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस वही है जो प्रॉफिट जनरेट करता है ना। आजकल जो स्टार्टअप के वैल्यूएशंस आ रहे हैं, तो yesterday I was talking to आशीष चौहान जी, CMD and CEO of the National Stock Exchange. He said कि आपका स्टार्टअप हो, SME हो, एसेट लाइट मॉडल हो या एसेट के साथ बिजनेस मॉडल हो, जब तक आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है या उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं लगती, आपको इन्वेस्टमेंट कभी नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ मान के रखिए कि प्रॉफिट। नाउ एक ज़माने में कहावत होती है कि 900 दिनों तक बिजनेस चला, उसके बाद आप सस्टेनेबल हो जाओगे, वो अब कहावतें चली गई सर। तो मेरा सबसे बड़ा एक मैसेज आज यहीं से ये हो कि डिजिटल मीडिया को एज ए बिजनेस एनालिटिकल टूल की तरह यूटिलाइज करो, ताकि डेली बेसिस पर आपकी सेल्स फोर्स, आपकी HR की टीम, आपके ऑपरेशन, आपके फाइनेंसेस को आप रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर पाओ। उस ट्रैकिंग के बाद आपकी क्वार्टरली और 6 मंथली बेसिस पे एक रिव्यू होना चाहिए कि जो मेरा स्ट्रैटेजी है बिजनेस चलाने का, वो राइट डायरेक्शन में या रॉन्ग डायरेक्शन में। उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजिक डिसीजन को चेंज करिए और कोशिश करिए कि ऑपरेशन एफिशिएंसीज को डिजिटल टूल को यूटिलाइज करके उसे इम्प्रूव करिए आप। अदरवाइज़ क्या होगा कि लीड जनरेट हो जाएगी, बिजनेस आपका आ जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं आया पीछे, तो आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा, कॉलेप्स हो जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए डिजिटल टूल यूज फॉर अ सर्वाइवल, देन सस्टेनेबल, make a system, offload your work to the team and go for the growth place. Okay, so this is what my message to the audience and how we can increase the profitability for the SMEs. Thank ब्रिलियंट। तो आपने बेसिकली टच अपॉन ये किया कि सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं, HR जैसे फंक्शन का भी आपने जिक्र किया। ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू हैव अ डिजिटल फर्स्ट अप्रोच, and therefore we can have the better CSAT scores and better operational efficiencies, and therefore profit comes. Right. ultimately. HR की बात करिए, आपके यहाँ कोई बंदा अगर 8 घंटे जॉब कर रहा है, आप उसे 50,000 पे कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है और पर मिनट कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयड मैन पावर क्या है, वो डिजिटल से पॉसिबल है। Absolutely, wonderful, wonderful. I think another amazing point you made. And finally, अभिषेक, मैं आपके पास लौटना चाहूँगा। एक चीज़ जो रह गई है कि
आजकल बहुत सारे ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज आ गए हैं, बोथ नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली. तो क्या SMEs इन्हें यूज कर सकते हैं टू काइंड ऑफ इंक्रीज बिजनेस बाय इंटीग्रेटिंग इनटू इट? व्हाट आर योर टेकअवेज ऑन दिस? Again, I would like to ask few questions. इंडिया मार्ट पे कितने लोग हैं विद देयर प्रोडक्ट? इंडिया मार्ट पे कितने लोग हैं? Amazon and then Udaan, Meesho. So there are multiple B2B channels. इंडिया मार्ट क्या है? इंडिया का होम ग्रोन फर्स्ट B2B channel in India to help businesses achieve multiplier growth for their business. आप देखेंगे अगर आपको से फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, हमारे क्लाइंट बनाते हैं इसलिए हमें पता है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन चाहिए, आप इंडिया मार्ट पे जाएंगे, यू विल गेट 10 कंपनीज हु आर मेकिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स with ratings, reviews from the actual buyers. And I have seen people do business through all this Trade India, India Mart, Alibaba का जो portal है, इससे they have done billions of dollars business. India Mart itself, so India Mart क्या है? India Mart पे कितने sellers registered होंगे सर? इंडिया के कितने sellers India Mart पे registered होंगे? Paid user. India Mart has 90 lakh users. Out of that 90 lakh users, 64 lakh users are paid users. 64 lakh SMEs. And India Mart is specifically for SMEs. Again, it is a B2B e-commerce. Udaan is a B2B e-commerce. Meesho again a B2, I cannot say B2B, but brand to wholesaler e-commerce. Correct. Then comes Amazon, then comes eBay. आप लोगों ने कितने लोगों ने सुना eBay? Anyone sold through eBay? Yeah. eBay was the best solution till date to sell your things globally. Am I correct, sir? Yeah, absolutely, absolutely. If you are doing if you are doing some merchandising, if you are doing some specific consumer side trades, eBay was the best part. आज भी आप देखेंगे तो आपके हर business, be it textiles, be it engineering, be it any business which is doing some kind of product, they are selling online. जब आप ऑनलाइन बेचते हैं तो व्हाट द बेस्ट पार्ट इज देयर इज सेल्स कमीशन ऑलवेज देयर विल बी. इन B2B इट इज अराउंड 2 to 5% एंड इन B2C इट इज अराउंड 30-35% इंक्लूडिंग द डिलीवरी कॉस्ट. बट आप एक नए आदमी को टच कर रहे हैं, एक नए पर्सन को टच कर रहे हैं, एक नए कस्टमर को टच कर रहे हैं थ्रू डैट. आप इन जनरल भी अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जहाँ पे 10% कमीशनिंग करते ही हैं थ्रू ऑल योर डीलरशिप चैनल, इफ़ यू कैन एम्पावर दोज डीलरशिप चैनल प्लस योर ई कॉमर्स एंड ट्राई टू डू इट थ्रू अ CRM, have a system which can integrate all your online से जमाने गए साहब कि एक या दो चैनल होती थी sales की. There are thousands of channels for sales today. What you need to do is integrate all those 1,000 channels in your CRM. And आप धंधा कीजिए, जितना धंधा करना है करिए, सारा ऑटोमेटिक मोड पे होगा. Interesting. एंड अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना हो आपको, देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ ग्रेट टूल टू इंटीग्रेट विथ योर सेल्स चैनल, जिससे कि आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन विच इज द की फॉर एनी SME. आई वोंट से फॉर वन, एनी SME वर्क्स फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. SME कुछ भी करे उसको उसका धंधा करना आता है. So again, on that note, I'll end. Yes, Abhishek, I think that's a wonderful feedback. जैसा आपने कहा कि भले कमीशन कुछ भी हो, but ultimately सबको integrate करेंगे तो we'll have multiple sales channel handling capabilities. So thank you for that input. And this was
just a 1 hour of quick discussion from the all these esteemed speakers, but the real value of today's session will come from the questions you ask. So I would love for you guys to ask good insightful questions, please. Yes sir, I think the gentleman is raising the hand. एक अगर mic उन्हें दिया जाए तो everyone can hear properly. Please sir. नमस्कार सर। सर अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैं उसके लिए पे नहीं करना चाहता तो एज अ इंडिविजुअल मेटा डेटा को समझना और प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन को सीखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? यूट्यूब Best सबसे way- पहले सबसे बढ़िया चीज है, यूट्यूब कीजिए। आप खुद अंडरस्टैंडिंग जितना लेना चाहते हैं, देखिए आपको आपका टाइम की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। आप कितना टाइम आप उस पर स्पेंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द एम्पल टाइम, यूट्यूब इज देयर आर मल्टीपल सोर्सेज, उडेमी के कोर्सेज हैं Absolutely. हजारों। आप इवन आज कुछ चीज़ सीखना कोई बड़ी बात नहीं रही। आज मैंने सीए बनने के बाद ब्लॉकचेन सीखा, ब्लॉकचेन सिखा रहा हूँ लोगों को। ब्लॉकचेन क्या है लोगों को नहीं पता होता। ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसी लोग समझते हैं। Absolutely. अगेन तो मैंने सब कुछ ऑनलाइन मैंने खुद सीखा है, मेरे को कोई सिखाने नहीं आया। सो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। And in addition to what Abhishek clearly rightly mentioned कि YouTube है, YouTube के अलावा Udemy पे you'd be surprised 500-600 रुपए के कोर्सेज होते हैं। मेरे यहाँ पे कई मेरी टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो they are laughing because I keep pushing them कि भैया ये Udemy का कोर्स लो, सीखो and tell me what you've learned। अच्छा इसके अलावा एक और चैनल है सर, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट का एक स्वयं पोर्टल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल द कोर्सेज, जिसपे इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी हैं, मार्केटिंग के कोर्सेज भी हैं, हर तरह के कोर्सेज हैं। तो अगेन सॉरी, मैं इस पे दो चीज और, क्योंकि आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कई लोगों के लिए, दो और क्वेश्चंस है। आप कभी अगर चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन पूछेंगे ना कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न दिस, तो यू विल बी सरप्राइज्ड। एंड फाइनली स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के सर्टिफाइड पेड कोर्सेज है, दे विल गिव यू अ सर्टिफिकेट कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। तो सो लॉट ऑफ द इंटरनेट हैज चेंज्ड द वर्ल्ड एंड यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। ग्रेट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। One more question to Dhruv sir. Sir, with the government support, Jio has came in. Jio के आने के बाद देखा गया है कि जो स्कैम्स हैं थोड़े बढ़ गए हैं, या डिजिटल मीडिया यूज़ करके कोई भी कुछ भी प्रमोट कर सकता है। तो दोनों मेटा का जो डेटा है वो आज की तारीख में कितना सेफ है, और बिग डेटा हमारे लिए कितना हार्मफुल है? जियो इंडिया में सिम कार्ड लेके आने का सबसे फर्स्ट रीज़न ये था कि जियो ही क्यों आया। ऑरेंज करके एक कंपनी है जो सिम कार्ड बना दी थी, वोडाफोन है, ये सब बाहर की कंपनी है, वोडाफोन इंडिया का नहीं था। उसके पहले हज था, उन लोगों ने एक्वायर्ड किया इन लोगों का। इनकी जब फंडिंग्स देखेंगे आप, दिस आर ऑल द यूएस एंड दी अदर कंपनीज, मेजरली चाइनीज़ कंपनीज़ है, इवन जोमेटो स्विगी भी है। तो जोमेटो स्विगी आज इतना हाई चीज़ों को लेता है, टैक्स हम लोगों को ही पे करना पड़ता है, जो वेंडर होता है उसको भी पे करना पड़ता है। तो दिस आर ऑल दी चाइनीज़, ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड, जियो को इसलिए प्रमोट किया क्योंकि मेड इन इंडिया है, इसलिए सिम कार्ड उसका बाहर आया। जो आपने बोला ये जितना भी मेटा डेटा है ये सब कुछ सेफ कैसे रहेगा, जियो इतना आ रहा है, अटैक्स बढ़े। जियो के आने की वजह से लोगों ने सिम कार्ड यूज़ करना सीख लिया। पहले के टाइम में मोबाइल के जो बिल्स थे, जो प्रीपेड प्लान्स थे, पोस्टपेड प्लान थे, वो हर छोटे लोगों के लिए भी फिजिबल नहीं थे। पहले सिम कार्ड देने के लिए भी पैसा लगता था, लेने के लिए भी लगता था। तो सबसे पहले तो लोगों को डिजिटल करने के लिए, उनको डिजिटल इंडिया में लाने के लिए जियो ने स्कीम्स बाहर निकाली कि फ्री में सिम कार्ड लेके जाओ। इट्स नॉट अप टू नाउ जियो, एयरटेल भी आ गया, सब कोई आ गए। बात यह है कि इसको रोका कैसे जाएगा, क्या करा जा रहा है और क्या करना चाहिए। ट्राई करके एक डिपार्टमेंट है जो इंडिया में चलता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, TRAI। इन लोगों ने ऑलरेडी मॉनिटरिंग चीज़ें लगा दी है, जिसकी वजह से आप डेटा को, जितना भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जितना भी बिग डेटा है, ये सब मॉनिटर हो सकता है। पहले सिम कार्ड के फ्रॉड्स पकड़ने में तकलीफ होती थी, आज की डेट में किसी की भी लोकेशन निकालनी, अगर नंबर एक्टिव है तो 10 मिनट भी नहीं लगता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को। तो डेटा कंट्रोल करना, डेटा मॉनिटर करना, डेटा को एनालिसिस करना ऑलरेडी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। इंटरेस्टिंग। आई थिंक अगर मैं आपको समराइज करना चाहूँ तो इनका जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, बेसिकली आपने जो कहा कि जियो हैज़ चेंज द गेम
So it is a bigger target basically. So that is the reason why you are perceiving it, but it's not the case, and the government is actively on this case and they are actually taking a lot of good steps. So thank you for that. We have time for 2 more questions, please. So आप बहुत time पहले से please mic over. What are the good tools for operational experience, excellence in manufacturing organization? My question to Vinod ji, what are the operational tools, means maybe free or better priced, that an MSME can use it for its operational excellence in manufacturing organization? ZEED आप यूज़ करें, ज़ीरो डिफेक्ट वाला जो अभी एक MSME का ड्राइव चल रहा है, उसको आप फॉलो करिए. देयर इज स्पेशल फॉर्मेट डिज़ाइन ओनली फॉर द SMEs कि ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट, उस हिसाब से एक पूरा कोर्स चल रहा है. और उसके अंतर्गत आपके सारे जो सेगमेंटेशन है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसा हो रहा है, इन्वेंट्री के बाद प्रोसेस का टाइमिंग क्या हो रहा है, प्रोसेस के बाद आपका डिस्पैच क्या हो रहा है, अगर आप ऑन साइट इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आपका B2B या B2C प्रोडक्ट है तो उसकी पूरी जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर वो पूरा एक ब्रीफिंग देंगे. इफ़ यू आफ्टर दिस सेशन आई विल शेयर द डिटेल्स. वो आप इम्प्लीमेंट करिए. आई प्रॉमिस यू विल इंक्रीज योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय 22% ऑन रिकॉर्ड. Interesting. Thank you for that. That is a good tool as far as learning is concerned. But what are the IT tools or digital tools? Okay. So if you talk about my company, we have successfully implemented ERP, and वो हमारी प्रोसेस के हिसाब से हम लोगों ने कस्टमाइज करके डिज़ाइन करवाया हुआ है. तो अगर आप रेडीमेड टूल्स करते हैं तो इनिशियली वी वर यूजिंग जोहो के मल्टीपल ऑप्शन यूज़ कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशन थी एज पर माई बिजनेस एक्टिविटीज़. सो वी वेंट अहेड एंड वी हैव डिजाइन आवर ओन ERP. Interesting. Thank you. That was a great question and good answer there as well. Useful. Now, all the speakers, all 5 of us are available post the session also offline, online. So I would request only one more further question. We are 10 minutes over time. So I think that gentleman there has been raising his hand for a long time. Please. Okay, so I've been into SEO since last 13 years. We also do digital marketing. And as you know, Sandeep bhai mentioned ke maximum લોકો ne je problem છે કે they don't understand કે budget કઈ રીતે spend કરવું. In digital marketing, either it's SEO, SMO, everything. So મારો question એ છે કે how you can understand કે આટલું બજેટ તમારે સ્પેન્ડ કરવું જોઈએ. So we do SEO, we make them understand, we educate them about SEO. They are ready to spend into SEO. But most of the time what happened is they don't know any figure in their mind about SEO. They are like, sir आप पैकेज भेज दो, हम देख लेंगे कौन सा suitable है. And we are like, that is not how SEO works. It is about your ICP, identical customer profile. Sir, but what's your question? If you could. Yeah, my question is how you can convince them that how you can actually have a budget. Is there any way that we can ask them for budget instead of giving them predefined Sandeep, packages? Would you like to quickly address this Anyone from panel? So it is a very tricky question and it will be changed based on person to person कि आप कौन से prospect के साथ deal कर रहे हो. So इसका कोई राइट आंसर या रॉन्ग आंसर नहीं है, बट समटाइम्स व्हाट आई डू, जब क्योंकि मैं भी डील करता हूँ काफ़ी क्लाइंट्स के साथ, सो जो मेरा कन्वर्जेशन होता है उस क्लाइंट के साथ वो कितना लंबा चलता है, कितना इंटरेस्टिंग चलता है, एंड उस कन्वर्जेशन के अंदर से मैं एक जस्ट आइडिया लगाता हूँ कि हाँ आपके बिजनेस के लिए दिस इज़ माई प्लान, दिस इज़ माई स्ट्रेटेजी एंड दिस इज़ द बजट विच आई थिंक के आपको मैं अच्छा सा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट करवा सकता हूँ एंड उसमें इतना टाइम लगेगा. सो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है क्योंकि दिस इज़ द सर्विस. अब होता क्या है हमारे क्लाइंट्स के साथ कि हमारे से वो सर्विस लेता है एंड 3 months 4 months बाद उसको पता चलता है कि अच्छा ये तो ऐसा निकला, इसका रिजल्ट तो ऐसा आया. अगर मैं कुछ प्रोडक्ट बेचता हूँ फॉर एग्जांपल दिस, तो उसको पता है कि इसका लुक एंड फील कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है, बट इन टर्म्स ऑफ सर्विस नथिंग. वो मुझे पे करेगा और उसको 3 महीने बाद दिखेगा. सो इट डिपेंड करता है अगेन कि आपका कन्वर्जेशन कैसा रहा है क्लाइंट के साथ. मेरा एक मैं बायर साइड पे बैठा हूँ, आप मुझे बेचते हैं SEO का. एक फंडा बताता हूँ, हर एक बायर को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए. गो फॉर PPL एंड PPA. पे पर क्लिक मॉडल चलता था, पे पर लीड, नाउ पे पर एक्विजिशन.
आप मुझे 10 लाख का कन्वर्जन करके तो 2% मैं आपको दूंगा. दिस इज द बेस्ट मॉडल. Performance marketing, basically. But go for the performance market. Absolutely, absolutely. Okay. So we'll talk. We can take up this further discussion offline. We are on a short on time, and Jaimin ji is waiting to give the. Ji, very quickly. So I do what Sandeep has done. So. Acha, thank you if you insist. I'll only take 20 seconds. I am Ahmedabad, batch of 2003. So I used to be in a senior position in Citibank. Then I quit and started the digital marketing agency. मैं abroad जब भी speak करता हूँ लोग बोलते हैं कि इंडिया में लोग खराब क्वालिटी का SEO करते हैं. एंड मैं लंदन में मुझे बड़े दिल पे बात लगी तो मैंने कहा हम इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए बढ़िया काम करके दिखाएंगे और आप हमारे पास आएंगे, हमें आपको बेचने आना नहीं पड़ेगा. दिस इज द मोटो. थैंक यू. थैंक यू. Thank you very much, friends. First of all, thank you, Amit ji, for conducting the wonderful sessions. Thank you, friends, enjoying the interesting session. And first of all, give a big round of applause to all our experts. They are not only experts, but they are the experienced experts. The way Vinod has suggested, the way Dhruv has, only he's expert. Sandeep and Amit ji, I think a special thanks and a round of applause for Amit ji. He has wonderfully conducted. और या मैं जब हिंदी बोलता तो जी आ जाता है, गुजराती में नहीं आता. But anyway, friends, our AMA is doing lot of activities for MSME, and we are organizing various programs because it's my domain. MSME is my domain where I did my PhD in MSME, and being MSME I know what are the problems, and being the old generated, first generated entrepreneur, I know it is very difficult for people like us to change, to convert and to come to the real life. So I am their students really, and I want that taking the tips from them, I also would like to increase my business, increase my profits. Once again, thank you very much to all of you, and request you to please attend such kind of SMA growth stories. I am sure and I assure you that you will be benefited and you will get lot of inputs and understanding. Thank you so much.